بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ سفینہ خان صاحبہ موجود ہیں۔ سفینہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں۔ سفینہ، دعائیں تو پاکستانیوں کی بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو کام آپ نے کر دیا۔ جو میں دیکھ رہا تھا، ایک تو ایک نہتی خاتون اور اتنے نامردوں کے بیچ میں اور امبیسی کے سامنے، اور وہاں پر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جتنے نامرد کھڑے ہوئے تھے وہ نہ کشمیری تھے نہ پاکستانی تھے، بلکہ وہ انڈین را کے ایجنٹ تھے، جو کہ آزاد کشمیر کے شہری بن کر جھوٹے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ بھی الجھ رہے تھے۔ کیا کہیں گی؟ وقاص، ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، جس نے پاکستان کو گالی دے دی، جس نے پاکستان کی مسلح افواج کو گالی دے دی، وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بڑا ایک کلیئر کٹ پتا ہونا چاہیے ہم تمام لوگوں کو۔ اب آتے ہیں کہ جی وہاں پر ایجنڈا کیا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ انڈین پراکسیز وہاں پر موجود تھی۔ یہ وہی چہرے ہیں جو کبھی مجھے بلوچستان میں نظر آتے ہیں، بلوچستان کے پروٹیسٹوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ وہی چہرے ہیں جو کبھی مجھے افغانستان کے پروٹیسٹوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کبھی کشمیری بن جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹوں میں نظر آتے ہیں۔ تو چنک وہی کا وہی تھا، اور یہی چہرے بعض انڈیا کے پروٹیسٹوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ میں ان تمام پروٹیسٹوں کو بڑا ہی میں کوئی اور اچھی میٹنگ ہو، کچھ ہو رہا ہو، فنکشن ہو رہا ہو، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ آج کل میں پروٹیسٹوں کو زیادہ کور کرتی ہوں تاکہ مجھے اصل میں گراؤنڈ کے اوپر جو ان لوگوں کے اندر کراؤڈ ہوتا ہے، جو رینٹ کراؤڈ میں اس کو بولتی ہوں، کیونکہ اگر ایک ہی چنک ہر جگہ پہ شفٹ ہو رہا ہے، دیٹس مین اٹس اے رینٹ کراؤڈ۔ ان کو پیسے، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کو ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور یہ کرنا ہے، اور وہی وہ کیا جاتا ہے، ورنہ آپ کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جو اوریجنل کراؤڈ ہوتا ہے نا، جو اپنی مرضی سے، اپنی ول پاور سے آیا ہوتا ہے، اس کو کوئی لوگ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر سکتے، آپ وہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اپنا نیریٹو، کہیں اپنی بات نہ کوئی کہہ دے جو ہمیں نامنظور ہو۔ تو جب میں وہاں پر تھی، لوگوں کے انٹرویو، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ لوگوں سے سوال کر رہی ہے اور لوگ اس کو ڈفرینٹ کوسچنوں کے بہا پہ ڈفرینٹ جواب ملتے ہیں اس کو، کیونکہ سوال کرنے والے پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس نے کیا سوال کیا ہے اور اس کا کیا جواب ملے گا۔ تو وہ خوف کی علامت وہاں پر سفینہ بن گئی۔ انہوں نے پولیس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس کو وہاں سے، یہاں سے جانے کو کہہ دیں۔ پولیس نے ان کو کہا کہ جانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ دور جا کے کھڑی ہو جائے۔ تو وہ میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود خوف اتنا زیادہ تھا۔ انڈین پراکسیز، وہ چہرے میں نے وہاں پر کھڑے اپنے باقی میڈیا پرسنز کو بھی بتایا کہ یہ مجھے بتائیں، یہ جو لوگ جا رہے ہیں اور نوٹ کہیں کہ یہ پاکستانی ہو سکتے ہیں، کشمیری ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ انڈینز ہی ہیں نا۔ پھر جب میں کہتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں وہی بتاؤں گی، تو اس لیے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں۔ میری تو لائف کا وقاص بڑا سمپل سا رول ہے، اگر آپ مجھے جو میں وہ آئینہ ہوں جو دکھاؤ گے وہی دکھاؤں گی، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتاؤں گی۔ تو وہ وہاں پر جو مجھے نظر آئے گا میں وہی بتاؤں گی۔ اگر پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں تو میں بولوں گی کہ یہ پاکستان مخالف ہیں۔ تو کس کا ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ پاکستان سے، پاکستان کی مسلح افواج سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ بھارت کو۔ آج انڈین جو ایکس آرمی آفیسرز ہیں، وہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو کشمیر کے اندر بھی پورے گروہ موجود ہیں، ہمارے انگلینڈ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو ہماری بات کو ٹو کرتے ہیں، اگر ان کو ہلکا سا پش اور کیا جائے تو ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ انڈیا خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کی پراکسیز ہیں، تو جب وہ پراکسیز انہی کی زبان بولیں گی تو میں کیسے کہہ دوں؟ میں دیکھی ہوئی چیزوں کو کیسے انکار کر دوں کہ یہ میں غلط دیکھ رہی ہوں؟ میں تو وہی دکھاؤں گی جو میں نے دیکھا ہے۔ انڈین ایمبیسی جو لندن میں ہے، اس کے لوگ بھی آپ نے دیکھے جو کہ پاکستانی یا کشمیری بن کر وہاں پر پاکستان افواج اور پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے جو میڈیا پرسنز میرے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ میں آخر تک وہاں پر موجود رہی ہوں جب کراؤڈ جا رہا تھا، یعنی کہ ان کا ٹائم اپ ہو گیا، پولیس نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ جاؤ، تو میں نے ان کو مینشن کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ انڈینز نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا ان کی باڈی لینگویج، یہی تو لوگ مانیٹر کر رہے تھے، یہی تو لوگ جا کے ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں ایسے بولو۔ میں نے کہا یہی تو ڈکٹیٹ کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ تو اندر موجود تھے، تو مجھے بتائیں کہ وہاں سے کیا انسٹرکشن آ رہی تھی؟ کہتے وہ یہی آ رہی تھی کہ اس کو ہٹا دو۔ میں نے کہا آپ لوگ میڈیا پرسنز نہیں تھے؟ میں نے کہا کیونکہ انڈینز کو میرا چہرہ یاد ہو چکا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی، میرے اندر ان کو عاصم منیر نظر آتا ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ وہ لگتا ہے کہ میں ہوں تو میں خطرے کی علامت ہوں۔ بھائی میں نے بار بار کہا ہے کہ جنگ آپ کو گھر میں گھس کے عاصم منیر ان کی مسلح فوج نے مارا ہے، میں نے نہیں مارا۔ بھائی میرے پہ مت غصہ نکالو، جو میدان میں لڑ نہیں سکے وہ ایک خاتون سے لڑ کے کیا ثابت کر دیں گے؟ نامردگی دکھائیں گے۔ سو وہاں پر موجود بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمارے اپنوں کی بھیس میں بھارتی موجود تھے۔ تو تحریک انصاف کا بتائیں ذرا، یہ تحریک انصاف کشمیر کمیٹی کے ساتھ مل کر وہاں پر کیا گل کھلا رہی ہے؟ اچھا، یہ ابھی آپ نے بات کی، انڈین وہاں موجود تھے۔
जो पीटीआई का वही प्रोटेस्ट रेंटा कार, जो 30 से 40 मैक्सिमम बंदे हो जाते हैं, वही उधर मौजूद थे। और बाद में शहजाद अकबर आए ऐसे विक्ट्री का निशान बनाते हुए कि जैसे, और उनको लोग रिसीव कर रहे हैं, मेरी वीडियो में ऑन रिकॉर्ड, आप अंदर आ जाएं जी, आप अंदर आ जाएं। उनको अंदर लेके गए हैं। डेफिनेटली वहां पे भी तो सबने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। उन्होंने सोचा कि हम इंडियन प्रॉक्सीज, इनके होते हुए लाइमलाइट हमारी छिन जाएगी। उन्होंने शहजाद अकबर और अजहर मशवानी और बाकी लोगों को धक्के दे के निकाला। अभी भी मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बोला, आपको पता ही नहीं है अंदर शहजाद अकबर के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं बताऊंगा अंदर क्या हुआ था। सो मेरा कहने का मकसद है वो जलील करके बड़ी बुरे तरीके से शहजाद अकबर को निकाला। तो अब इंडियन प्रॉक्सीज जो है ना, वो भी आपस में लड़ रही हैं कि लाइमलाइट हमारी हो, पैसा हमें ज्यादा मिले, दूसरे को कम मिले। तो अब तो ये जंग शुरू हो चुकी हुई है कि हम बने कि हम आपके बड़े वफादार हैं, जो माल शाल देना है वो डायरेक्ट हमें दे, ये दूसरे आके जो है हमारे सर पे ना नाचे। ये लड़ाई चल रही थी वहां पर। आप तो वहां रहती हैं, कवर भी करती हैं, लोगों से मिलती भी हैं। आजाद कश्मीर के बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान से माइग्रेटेड हैं, यूरोप में, यूके में। जो ओरिजिनल आजाद कश्मीर के लोग हैं, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो? आर दे हैप्पी विद आजाद कश्मीर जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है? कभी ऐसे लोगों के साथ कोई इंटरव्यू लेकर आए ना, कुछ ऐसी बातें बताएं हमें। मैं इसी पे काम कर रही हूँ। आई विश कि मैं आपको वो चैट दिखा सकूं जो मुझे कश्मीरी बहन भाइयों ने की है, कि सफीना बाज लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर किस लिए ले जाया जा रहा है। हम तो यही समझे कि हम कश्मीर की बात करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन वहां जाकर तो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे और हम देंगे आपको इंटरव्यू कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। तो बाज लोग वहां पर मासूम भी थे जो कश्मीर के नाम पे वहां ले जाए गए, और बाद में उनको पता चला कि इनका एजेंडा कुछ और था। तो ये फैक्ट है। बहुत सारे, क्या हर बंदा कश्मीरी आके सामने, वहां पर देखिए, यहाँ पर जो बैठे हुए कश्मीरी हैं वो बड़े सिविलाइज लोग भी मौजूद हैं, वो बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो खुद कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे जब भी बात करूं, वो कहते हैं कि ये शरपसंद अनासर आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर भी बिक जाते हैं, हर जगह पे बिक जाते हैं, हर मुल्क के अंदर ऐसे गंदे अंडे होते हैं जो बिक जाते हैं, ये हमारा नाम बदनाम करते हैं। इवन कट्टर जो कश्मीर की आजादी के लिए हकूक की बात करते हैं, उनका अपना मुझे कहना था कि 99.9% जो है ना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, डेफिनेटली अपने हकूक की बात करते हैं, जो उनकी जायज रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम उनके साथ हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ कतन कभी भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ है। ये तो बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये मैं मेड अप नहीं कर रही। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि कश्मीरी तो ऐसे नहीं है जैसे ये पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं, जैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं, जो इंडियन एम्बेसी के लोग वहां पर मौजूद थे, जो वहां पर इंडियन चेहरे मुझे नजर आए, जो कभी अफगानिस्तान के प्रोटेस्टों में होते हैं, वही जो उनको डिक्टेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, वही वो वहां थे। वही जो बलोचिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्टों में मौजूद होते हैं, वही कल उस प्रोटेस्ट में भी मौजूद थे। तो ये रेंटा क्राउड है, मैं कहूंगी कि वही 40-50 का है। बाकी बीच में मासूम लोगों को ले जाया जाता है, जब वहां जाके उनको पता चलता है कि जी हमारे साथ तो वो हो गया जो हमें नहीं पता था। तो डेफिनेटली 40-50 का क्राउड है, जो ये रेंटा क्राउड है, जहां चाहे इनको मैनेज कर लिया जाता है। अच्छा, इस सारी वेव के अंदर शहजाद अकबर, शहबाज गिल, आदिल राजा, उसके बाद आपका मोस्ट फेवरेट इमरान रियाज खान, इन लोगों ने जो किरदार अदा किया है मीडिया के ऊपर, और इन्होंने अपना जो बुग़्ज़ था तहरीक इंसाफ का या उनके यूट्यूबर्स का, वो तो इतना तो काम कश्मीर कमेटी नहीं चाहती थी जितना बुग़्ज़ इन्होंने निकाल दिया है। इस पर आपकी क्या राय है एज ए मीडिया पर्सन? देखिए वकास, ये भी तो किसी ना किसी तरह से पेरोल पे हैं, इनको भी जो व्यूज मिलते हैं तो इनको भी पता है कि किन के व्यूज मिलते हैं। इंडियन सोशल मीडिया एजेंसीज हैं जो इनको बूस्ट करती हैं, जो इनको व्यूज दिलवाती हैं, जो इनके फॉलोअर्स बढ़ाती हैं, वो तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। ये तो इंडियन खुद खुलेआम अब इस चीज का इकरार करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं जो पीटीआई के लोग होते हैं, उनके जो यूट्यूबर्स हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, उनका तो रोटी जो है ब्रेड एंड बटर ही इंडियंस के ऊपर है। कोई जो आदिल राजा है वो इंडियन टीवी चैनल्स पर बैठता है, उसको डेफिनेटली, वो क्यों बैठता है, उसको लाइमलाइट मिलती है, उसको डेफिनेटली पैसे भी देते होंगे, क्योंकि शो में ऐसे तो नहीं लाके बिठा दिया जाता ना, और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से झूठी सच्ची कहानियां सुनाई जाती है, क्योंकि बदकिस्मती से उसके नाम के साथ
मेजर लगता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ रहा है। तो ऐसे लोगों को बेचना बड़ा आसान होता है। इमरान रियाज जो कहता फिरता था टक्कर के लोग हैं, खुद भगौड़ा बना हुआ है, यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे की से जिंदगी गुजार रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, कभी किसी ऐप की पब्लिसिटी करके पैसे कमा रहा है। तो ये भला किसका कर रहे हैं? ये तो डॉलर फरोश लोग हैं, ये तो डॉलर में कुछ भी आप इनसे खरीद सकते हैं। मैं तो बदकिस्मती से कहती हूँ ये भी बात कि कल कला को इनके व्यूज गिर गए तो आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है, ये अपनी माओ बहनों को खड़ा कर देंगे अपने सामने। व्यूअरशिप की इनको इतनी लत लगी हुई है कि अगर इनको वो कम हो जाए तो इनके अंदर से ऐसे जैसे खून कम हो जाता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इन लोगों के अंदर बेगैरती का लेवल जो है वो बहुत ही हाई है, और मुहब्बे वतनी का लेवल तो अब मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है इनके अंदर। पैसा इनके लिए सब कुछ है, पैसा वो देते हैं और जो मर्जी इनसे करवा लें, जो मर्जी उगलवा लें, जो मर्जी बुलवा लें। और भारत इस मामले में काफी एक्सपर्ट है, पैसे लगाने में, पैसे देने में। ये तो अब कोई चीज झुकी चुकी तो है नहीं। लास्ट क्वेश्चन, कश्मीर जॉइंट कश्मीर कमेटी का एहतजाज, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का और बिलखुसूस आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का इसको हैंडल करना, और अब फिर से आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बातचीत की दावत की है। आप इस सारे सिनेरियो को एज एक्सपर्ट किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? क्या पाकिस्तान ने अच्छा किरदार अदा किया है, सारे माहौल को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया, इंडिया की लाख कोशिशों, तरीके इंसाफ की, प्रॉक्सीज की कोशिशों के बावजूद वो परसेप्शन नहीं बना पाए जो कि माजी में कभी बना पाते थे अगेंस्ट पाकिस्तान? वकास, हमारी पाकिस्तान की मैं रियासत की अगर बात करूं तो उनका बहुत सॉफ्ट रहा है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की तरफ। अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो मैं जो सोशल मीडिया पे हो रहा होता है मैं उसको देखती हूं, तो वो इस मामले में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। वो चाहे मैं सियासतदानों को हटा भी दूं तो वो हमारे बहन भाइयों के साथ, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है, और वो नहीं चाहते कि अगर किसी की जायज ख्वाहिश है तो उसको पूरा ना किया जाए। डेफिनेटली ये मुझे पता चलता है कि जो ओवरऑल एज ए बीइंग मीडिया पर्सन मैं दूर बैठे देखूं, तो आपने बात की जैक की, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन पार्टी है, इसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव मुझे बरतानिया के अंदर नजर नहीं आता। कोई ऐसा चेहरा नॉन जो कह सके कि मेरा कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक रहा है और मैं उसको जो है वो आगे लेके चल रहा हूं, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। अभी आप ब्रेडफोर्ड के अंदर देखें, यहाँ पर बीच में पीटीआई के लोग मुलव्वस थे, उसमें भारतीय थे, अफगानी मुलव्वस थे, और वो कर कर आके इन्होंने कोई 60-70 का क्राउड था वहां पर जो इन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि वहां पर कोई भी ऐसा नॉन चेहरा नहीं था वहां पर मौजूद कश्मीरी। या मैंने बाहर मौजूद बैठे हुए कश्मीरियों से बात की तो मैंने कहा ये जो नारेबाजी कर रहे थे उनके वो गंदे गलीज लफ्ज उन मर्दों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मर्दों की तरफ से, कि इनको कौन जानता है। वो इतनी गलीज जबान में उन्होंने इस्तेमाल करके कहा कि ये कौन है जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हम इनको नहीं जानते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग भी फिर ब्रेव बने ना, सामने आए और इनको काउंटर करें, क्योंकि वो इनको काउंटर नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। अगर ये इंडियन प्रॉक्सीज है तो आप ही कश्मीरियों ने सामने आना है और इनको काउंटर करना है। दूसरी बात आपने कही कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है तो उन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ सामने आए हैं और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा कि मिल के चलते हैं आगे। ये है मैच्योरिटी जो हमारे पाकिस्तान को जरूरत है। वरना हमारी हुकूमत भी कह सकती थी, PMLN भी कह सकती थी कि भाई हमें सीटें कम कैसी मिल गई। देखिए, जो जिसकी आवाज है वो पहुंचनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उनका उसका इतना इक़्तिदार में हिस्सा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, पीपल्स पार्टी भी मेजोरिटी के साथ आगे जा रही है। कश्मीर के लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये चंद रेंट पे आने वाले लोग जो है 60 से 70 लोग, ये पाकिस्तानियों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है। ब्रेडफोर्ड के अंदर भी हुआ तो आप देख लें 40 से 50 लोग पूरे इंग्लैंड से, क्योंकि ये जो चेहरे हैं मैं नहीं जानती हूँ। मैं जब कश्मीरियों से पूछती हूँ मुझे बताएं ये कौन लोग थे, उन्होंने मुझे गिन के बताया 50 लोग, तो उन्होंने बताया कि ये PTI के हैं, ये PTI के हैं। ब्रेडफोर्ड में जब उन्होंने कहा कि ये सब PTI के हैं, तो PTI को खुद इटसेल्फ इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है इनके पास, तो किसी ना किसी तरह से कहीं घुस के इन्होंने वो चीज को यूज करना है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ। क्योंकि अगर भारत ने एक स्टेज किया है तो उसमें PTI भी तो ऑक्सीजन जाकर जो है वो प्रोवाइड करेगी, इंतशार तो फैलाएगी। जिस तरह से यहाँ पर इनको पैसे मिलने हैं ना, अगर वो गैंग ही खत्म हो गया तो इंडिया फंडिंग किसको करेगा? मुझे ये बताए ना वकास, इंडिया फंडिंग किसको करेगा? अगर वो पावर नहीं दिखाएंगे, कुछ काम नहीं करके
दिखाएंगे तो मास्टर बोलेगा ना, जब कोई काम नहीं कर सकते नल्लो तो हम तुम लोगों को पैसे किस चीज के दें। तो वो बढ़ चढ़ के देखे, इंडिया से अपने कंट्रोल नहीं हो रहा, खालिस्तान की तंजीम जो है उसकी जो तहरीक है भारत से वो कंट्रोल नहीं हो रही। मोदी अपने अंदर जो है भारत के अंदर बैठ के जो है वो रोज किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी महाज पे शिकस्त खा रहा है। तो जो इनका सोशल मीडिया या इनका टीवी पर बॉलीवुड स्टाइल की न्यूज चलती थी, अब वो खुद दबरदूस हो रही हैं। अब भारत के पास बयानिया बेचने के लिए बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी रह गए हैं, और वो गंदे अंडे रह गए हैं जो बेकाऊ हैं, जो अपनी माँ बहन का सौदा भी पैसे के लिए कर देते हैं। इमरान रियाज जैसे रह गए हैं, आदिल राजा जैसे रह गए हैं, शहजाद अकबर जैसे लोग रह गए हैं, बहुत सारे। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन सब में ना, थोड़ा सा पढ़े लिखे जो है शहजाद अकबर है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान किन हाथों में खेल रहा है, किन जाहिलों के साथ खेल रहा है। मतलब आप थोड़ी सी तो अपने आप को देखें कि आपका क्या कैलिबर था। आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के इदारों के साथ आप रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, आप थोड़ी सी व्यूअरशिप के लिए आप अपना जो है वो कद इतना, क्या मैं कहूँ, पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे तो मैं तो यही कहूँ ना, प्यूनी गॉड बन गए हैं आप लोग। तो शहजाद अकबर जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको जरा अपने ऊपर दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कि आप लोगों की मौजूदगी जो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी धब्बा बन जाती है। लास्ट 2 मिनट्स के अंदर ना मुझे याद आ गया, वो आप न्यू टीवी पे आप प्रोग्राम कर रही थी, वो आपके साथ एक वो उर्दू पॉइंट वाले, क्या नाम है? जीशान जो तरीके इंसाफ के कारकुन है। हाँ 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 हाँ, वो सहाफी हैं, यूट्यूबर हैं, आई डोंट नो क्या है, जो भी हम्म, मिक्स है। तो हाँ वो हाँ मिक्स ब्रीड आपको ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपके ही प्रोग्राम को शेयर करके कैप्शन में, मुझे तो अभी बताना नहीं आ रहा, लेकिन ही वाज यूजिंग सम स्लैंग वर्ड्स अगेंस्ट यू, हाँ। अच्छा, और मैंने नहीं आपको देखी गाली। फिर। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, मुझे मैं ज़रूर भेजिएगा। मैं वो उसे ज़ीशान से पूछना चाहूँगी कि तेरी माँ ने तेरी ये तरबियत की है। लोगों से पूछते थे ना कि आपने दूसरों के खिलाफ ट्वीट किए हुए हैं, तो अब उसकी ट्वीट देख के मैं उसको बताऊँगी तेरी माँ ने ये तरबियत की थी। तेरी माँ ने अगर सही तरबियत की होती ना, अगर मेरे जैसी तेरी माँ होती ना, तो चपेड़े मार-मार के तुम्हारा मुँह लाल कर देती और सिखाती कि औरतों से बात करनी। अभी देखिए वो उस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर कह रही हूँ कि इमरान खान कहता है मुराद सईद मेरा तोता है जिसमें मेरी जान है, तो भाई तू मामे का पुत्र लगता है कहने वाला। भी क्या कहीं तलबगार तो नहीं है मुराद सईद का? इतने चाहने वाले हैं भाई, मुराद सईद के अंदर कोई खास चीज है, मर्दों को भी उसने पागल कर रखा है भाई। इमरान खान अलग जो है वो पागल हुआ बैठा था, जीशान खुद तड़पा, ऐसे ऐसे तड़पा। आप उसका नाम ले, मैंने कहा नाम ही तो लिया है मुराद सईद। इमरान खान कहता है वो तोता है, मेरी उसमें जान है, वो तुम दुनिया से महफूज रहो। जैसे महबूबा को महबूब नहीं छुपा के रखता, मैं पूरी दुनिया में सह लूंगा, मैं कह दो बंद की सब सब चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तेरी यहाँ तेरे जिस्म पे एक आंच नहीं आनी चाहिए। ये तो लैला मजनू वाली कहानी हो गई ना। मैंने वो कहा भाई जीशान तुम्हें क्यों तकलीफ हुई?